Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to the session of the Hindu editorial analysis of the date 20 to 9 2023. So, in this video, we're going to learn some vocabularies along with synonyms, phrasal verb, and idioms and phrases. So, again, welcome. So, let's start the video. So, first of all, coming to the vocabulary section. द फर्स्ट वर्ड इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या होता है? हाई और रेज ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 140/90। अगर इससे ज्यादा हो जाए हमारा ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं दिस दैट स्टेट when you have high blood pressure, that is called hypertension, or you can say simply high blood pressure. High blood pressure. So again, I am requesting you to, if you are new to this video, then don't forget to subscribe the video. If you like this video, then press the thumb button so that and press the notification button so that you will get the notification of when I upload this type of videos. Here we are dealing with different types of vocabularies along with synonyms, along with some like phrasal verbs, with that idioms and phrases. Like these are the most important things that you need to know for if you are preparing for the government exam, like anything for SSC, UPSC, banking exam like SBI, IBPS, and anything else. So the next word is affect. What is the meaning of affect? Affect means make somebody or something change in a particular way. That means किसी कुछ चीज को चेंज होना, कुछ कुछ वे से एक चेंज होना। इसको आप, इसका सिनोनिम हो सकता है इम्पैक्ट। किसी चीज आप चेंज हो रहे, किसी चीज इम्पैक्ट हो रहा है, किसी चीज को अल्टर किया जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी चीज आपको, इन्फ्लुएंस। सो दीज आर द सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। Then coming to the next word, adequately. The meaning of adequately is sufficiently, that's enough। तामने बहु, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं sufficiently, enough बोल सकते हैं, पैसेबली भी बोल सकते हैं, PASSABLY, ये एक सिनोनिम हो जाएगा पैसेबली। फेयरली आप बोल सकते हैं, फेयरली, राइट। You can say amply. So these are the important synonyms of the word adequately. Next, the word is grim. What is the meaning of grim? Grim means very serious, something that is very, very severe, something that is very, very serious. In that case, you can use the word grim. Like you can say some synonyms like severe. It's severe, right? इसका मतलब severe हो सकता है। Inexorable. You can say inexorable. Inexorable. Right. You can also say stern, STERN. These are the some important synonyms. You can say door, you can say ghastly, GHASTLY, ghastly. You can also say gruesome. Gruesome, it's a very very important word, जिसको SSC वालों ने तो पूछ के मतलब जीना ही हराम कर दिया स्टूडेंट्स को। लेकिन ये वर्ड्स याद रखना, SSC के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। Next, coming to the word continuum. What is the meaning of continuum? A continuous series of things in which each one is only slightly different from the things next to it, but the last is very different from the first. Continuum का मतलब एक सीरीज होता है जहां पर ये जो जो भी उस सीरीज में जो भी हो, सपोज ये 1 है, ये 2 है, सो 1 2 से थोड़ा डिफरेंट होगा। लेट्स से ये होगा 3, ये 4 5 और 6, और ये 6 तो 1 से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। सो that's why it's called continuum. You can say some synonyms like continuity. You can say continuity बोल सकते हैं आप, persistence बोल सकते हैं, persistence इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसको वर्ड्स को लिखना जरूर। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है। एंड्योरेंस हो सकता है, एंड्योरेंस हो सकता है, एक अच्छा वर्ड है। फिर देन कमिंग टू योर वर्ड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग स्टेडीली इन अमाउंट और डिग्री, जो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। एग्रीगेट बोल सकते हैं हम, यू कैन से एग्रीगेट। यू कैन से एडिटिव, right? You can also say additive. You can say heightening, HEIGHTENING. So these are the some important words.
नेक्स्ट कमिंग टू द सेक्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब, देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब नया जानते हैं। देखिए जैसे कि पहला हो गया हमारा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होना, टूटना नहीं, यानी कि इसका मतलब टू स्टॉप वर्किंग स्पेशली इन रेफरेंस टू मशीन। जब आप कुछ मशीन चला रहे हैं और उस टाइम ये खराब हो गया, उस टाइम हम बोल सकते हैं ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनल्ड्स ऑफन ब्रेकडाउन्स, यानी कि जो आइसक्रीम मशीन है ना मैकडोनल्ड्स का, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा काम करना बंद कर देता है, स्टॉप्स वर्किंग, राइट। इन दैट सेंस यू कैन यूज। नेक्स्ट देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल अराउंड। हमने प्रीवियस क्लास में कॉल से कुछ फ्रेजल वर्ब सीखा था, जैसे कि कॉल इन का मतलब मदद के लिए बुलाना, कॉल आप का मतलब टेलीफोन से कॉल करना, या फिर आप कुछ चीज को रिमेम्बर कर रहे हो, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है आप किसी को विजिट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी लोग को विजिट कर रहे हो। कॉल एट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी प्लेस को आप विजिट कर रहे हो। देन कॉल आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल आउट, चिल्लाना, ठीक है। देन आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब कुछ चीज को कैंसिल कर देना। सिमिलरली कॉल अराउंड का मतलब क्या हो जाएगा, टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो। रॉय कॉल्ड अराउंड टू फाइंड ए नियर बाई मैकेनिक। सपोज आपका अभी मतलब गाड़ी व्हीकल खराब हो गया हो, अभी आप रास्ते में हो, और अभी आप पूछ रहे हो सबको, मतलब पूछ रहे हो सभी लोगों से कि मैकेनिक यहाँ पर कहाँ पर है। सो इन दैट सेंस यू कैन से यू आर कॉलिंग अराउंड टू फाइंड ए नियर बाई मैकेनिक, राइट। लाइक कम अप का मतलब क्या होता है, टू अराइज एज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन और रिसीव अटेंशन, ठीक है। एवरीवन टॉक अबाउट मतलब कुछ टॉपिक को आगे लाना, डिस्कशन में लाना। एवरीवन टॉक्ड अबाउट हाउ मच दे एंजॉयड द मूवी बट द रन टाइम नेवर कम अप इन द कन्वर्सेशन, मतलब सबने ये कहा कि ये जो मूवी है कितना एंजॉयफुल था, कितना एंजॉयबल था, बट ये किसी ने नहीं कहा कि इसका रन टाइम कितना है, इसका मतलब ये कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, ये किसी ने नहीं कहा, ये बातचीत में नहीं आया। तो कम अप का मतलब बातचीत में एक चीज आना, तो उसको कम अप बोलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि कुछ चीज डिस्ट्रॉय हो जाना, कुछ चीज फॉल अपार्ट हो जाना। माय न्यू ड्रेसेस कंप्लीटली फेल अपार्ट आफ्टर जस्ट 2 वॉशेस, यानी कि आप एक नया ड्रेस लाए थे, अभी उसको 2 बार वॉश किए हो और वो एकदम खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उस टाइम आप बोल सकते हो माय न्यू ड्रेस कंप्लीटली फेल अपार्ट, राइट। get ahead, what is the meaning of get ahead, to succeed or progress, like you will never get ahead at this company unless you follow the rule, यानी कि ये कहा जा रहा है अगर तुम इस कंपनी में ज्वाइन किए हो तो यहाँ पर तुम प्रोग्रेस नहीं कर सके, यहाँ पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम ये रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, यानी कि अगर तुम रूल्स को फॉलो करोगे तभी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। सो गेट एहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, राइट। ओके, हमारा 5 फ्रेजल वर्ब अब आज खत्म हुआ। अब चलते हैं 5 इडियम पे। तो डेली बेसिस में हम 5 वोकैबुलरी, 5 फ्रेजल वर्ब और 5 इडियम्स जानेंगे। इससे इससे जानने से क्या होगा, ये जानने से आपका जो वोकैबुलरी का स्किल है ना, एबिलिटी है, वो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ऑन अ डेली बेसिस इफ यू लर्न दीज थिंग्स देन डेफिनेटली आई गारंटी यू दैट यू विल आल्सो बी एबल टू गेट anything, you will also be able to understand everything, understand each and every word, and that's why, and after that you can solve any question from any type of exam. So that is the benefit of this class. So if you're new to this video, then I am requesting you to please subscribe this channel so that you will get these things on a daily basis. Then आते हैं idioms and phrases के तरफ। पहला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना उनको रैंक एंड फाइल बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड है, इधर देखो, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। देखिए, देयर वाज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर हिम अमंग द रैंक एंड फाइल, यानी कि उसके उसके लिए ऑर्डिनरी पीपल से बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। वाइड स्प्रेड का मतलब सभी तरफ से सपोर्ट आ रहा है, सभी तरफ से ऑर्डिनरी पीपल से, रैंक एंड फाइल से उसको सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है,
इन शॉर्ट पीरियड्स और नॉट रेगुलरली, मैंने इसका मतलब बहुत कम समय में। ही स्पोक इन फिट्स एंड स्टार्ट, हमारे कई दोस्त होते हैं ना मतलब बहुत कम समय में बहुत कुछ कह जाते हैं, उनको बोल सकते हैं ही स्पोक, मतलब उसने कहा इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि बहुत कम समय में उसने सब कुछ कह लिया। देन आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ए वी बिट। ए वी बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए लिटिल, यानी कि बहुत कम। देखते हैं एग्जाम्पल पे, ही इज नॉट एन इलेक्टेड पॉलिटिशियन हु डज ए वी बिट हेयर एंड ए वी बिट देयर अबाउट हायर एजुकेशन। वो एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन नहीं है जिसने कि इतना सी भी यहाँ पर और वहां पर हायर एजुकेशन के लिए वो कुछ भी नहीं किया, इत्तू सा भी कुछ नहीं किया। सो इत्तू सा भी को हम बोल सकते हैं ए वी बिट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, 4 नंबर इडियम, दैट इज आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या है दोस्तों, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो वॉज सिक 2 वीक्स एगो एंड वी वेयर वेरी वरिड, यानी कि जो कौन था, एक व्यक्ति का नाम है, वो बहुत उसका शरीर बहुत खराब था 2 वीक्स एगो, यानी कि 2 सप्ताह पहले वो बहुत खराब था। एंड हम भी बहुत चिंता कर रहे थे उसके बारे में, बट नाउ इट लुक्स लाइक ही इज आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन ये अभी दिखाई दे रहा है कि वो ये सब डेंजर से, ये डिफिकल्टी से बाहर निकल गया, यानी कि वो ठीक हो गया अभी, ऐसा देखने पर लग रहा है उसको। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे, अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब क्या होता है, अंडर हिज कंट्रोल। अभी चलते हैं इसके मीनिंग पे, सी इज अंडर द थंब ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि एक वाइफ जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा उसके हस्बैंड के कंट्रोल में रहता है। सो अंडर द थंब का मतलब अंडर हिज कंट्रोल। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। सो अगेन नाउ कमिंग टू द रीडिंग सेशन, देखिए साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब बहुत ज्यादा साइलेंट किलर, एकदम किसी को पता नहीं चलेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। साइलेंट किलर का मतलब ये होता है, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, यानी कि अभी इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में ये जो लोग हैं ना, वो ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में आना चाहिए। इंडिया कुछ करना चाहिए, इंडिया में जो पीपल है ना, ज्यादा पीपल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। देखते हैं कंटेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर हम पूरे दुनिया में बात करेंगे तो ये जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये अफेक्ट करता है, ये प्रभाव पकाता है, ये मतलब परेशान करता है कितने लोगों को, एवरी 1 in 3 इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर हम 3 लोगों में किसी भी आप 3 लोगों को उठा के ले आइए, एक तो ब्लड प्रेशर से वो जरूर अफेक्ट होके रहेगा, इस यही बताया जा रहा है। एंड 4 out of 5 डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल, एंड यही बता जा रहा है। और जो 5 से तो 4 लोग, अगर किसी भी 5 लोग को आप ले आओगे, उनमें से 4 लोग जिनको ब्लड प्रेशर हुआ है, वो तो एडिक्वेटली कंट्रोल भी नहीं करते, मतलब अच्छे से सफिशिएंटली, ठीक है, अच्छे से वो तो अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी नहीं करते। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी एक रिपोर्ट निकाला है इसके बारे में, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, रिलीज ऑन सितंबर 19। ये कब रिलीज हुआ, अभी सितंबर 19 में रिलीज हुआ था। इसमें ये बताया गया है कि जो डाटा हम पढ़े, ये WHO के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, इट इज ए ग्रीम रिमाइंडर। ग्रीम का मतलब क्या होता है, सीवियर रिमाइंडर, हमने पढ़ा था ग्रीम का मतलब सीवियर, इनएक्सोरेबल, स्टर्न, लाइक ड्योर, गैस्टली, ग्रुइज्म, ये हमने पढ़ा था। सो इट्स ए ग्रीम रिमाइंडर, ये एक हमारे लिए चिंताजनक बात है, दैट countries have done little to keep the biggest risk factor of death and disability under check despite the easy availability of inexpensive medicines। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सबके लिए एक चिंताजनक अभी सीवियर मुद्दा अभी पलट गया है। कोई भी कंट्री, हम जो भी कंट्री के बारे में बात करें, उन्होंने ये जो बिगेस्ट रिस्क है ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। हैव डन लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं किया, वो कंट्री ने कुछ भी नहीं किया। टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी, ये जो सबसे जो बिगेस्ट रिस्क है डेथ का और डिसेबिलिटी का, जो बिगेस्ट रिस्क है क्या है, हाइपरटेंशन,
उसको लेके कोई भी कंट्री कुछ भी स्टेप अभी तक अच्छे से स्टेप नहीं लिया। अंडर चेक, अंडर चेक, डिसेबिलिटी अंडर चेक, अंडर चेक का मतलब अंडर कंट्रोल, राइट, डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन एक्सपेंसिव मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन तो बहुत कम दाम में भी अवेलेबल है, लेकिन कोई कंट्री ये जो बिगेस्ट फिक जो डेथ हो रहे हैं कंट्री में, जो डिसेबल हो रहे हैं पीपल कंट्री में, बहुत सारे देशों में मेडिसिन बहुत कम दाम है, लेकिन फिर भी डेथ हो रहा है, फिर भी ब्लड प्रेशर सबका बढ़ रहा है। और इसी चीज को जो कंट्री हैं वर्ल्ड में चारों तरफ जो कंट्री हैं उन्होंने कोई भी अच्छे से स्टेप नहीं लिया, ये बताया जा रहा है इधर। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ओवर 140/90। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ऊपर है तो इसको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बोलेंगे। आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इज ए मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये जो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर है, ये इसी के वजह से क्या होता है, ये मेन रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर का, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर का मतलब आर्टरीज वैन, यानी कि हार्ट से जो रिलेटेड डिजीज है उनका सबसे मेन कारण क्या है? ये हाई ब्लड प्रेशर है, सच एज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हार्ट डिजीज होते हैं ना, हार्ट अटैक जैसे, हार्ट स्ट्रोक, इसका मेन कारण क्या है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। लोग अच्छे से ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और कंट्री भी आगे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए लोग मर रहे हैं, समझ रहे हो? एंड द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिजीज एंड डेथ, और यही सबसे कॉमन कोज है, सबसे ऑर्डिनरी कोज है जो डेथ को रहे हैं, जो डेथ हो रहे हैं लोगों का, जो डिजीज हो रहा है, बहुत सारा डिजीज हो रहा है, डिजीज से क्योर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मेन मुद्दा क्या है? इसका मेन मुद्दा है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। It is important to note that health risks associated with hypertension do not begin at over 140/90। और ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाला चीज है, इसको लेके, हेल्थ रिस्क को लेके, जो कि एसोसिएटेड है हाई ब्लड प्रेशर से, डू नॉट बिगिन ओवर 140/90। ये मतलब जब किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से बढ़ गया, ऐसा नहीं है कि बढ़ गया मतलब उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, वो उसका हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा, वैसा नहीं। इंस्टेड इंस्टेड दे ऑपरेट इन ए कंटिन्यूअम। अगर ये कंटिन्यू, अगर बढ़ गया तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आपको कुछ नहीं होगा। अगर ये बढ़ता रहा और कंटिन्यूअस सीरीज में ये बढ़ता गया, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में ये बढ़ता गया, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन। क्लिनिकल हाइपरटेंशन का मतलब होता है, डॉक्टर्स ने क्लासिफाई किया है कि इतना अगर बढ़ेगा तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, लेकिन उससे कम भी अगर होता है, कम भी मतलब कम बढ़ता है, आपके नॉर्मल लेवल से बढ़ेगा, लेकिन वो क्लिनिकल हाइपरटेंशन लेवल से कम होगा और ये कंटिन्यूअस होगा, तभी भी ये रिस्क बना रहता है हार्ट डिजीज के लिए, स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक। और ये किन में ज्यादा दिखाई देता है? जो कि डायबिटीज से जूझ रहे हैं, आर ओबेस, यानी कि जिनमें मोटापा है, एंड दोज हु कंज्यूम टोबैको एंड अल्कोहल, एंड वो भी जो हमारा टोबैको और अल्कोहल, टोबैको खाते हैं और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। हैंस reports on hypertension levels in the population underestimate the cumulative risk of high blood pressure। सो इसीलिए ये जो रिपोर्ट निकाला गया है WHO के द्वारा, किस किस में? हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर लेवल को लेके इन द पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन, जो भी कंट्रीज हैं, अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सो जो कंट्री सब जो पूरा का पूरा हाई ब्लड प्रेशर को रिस्क को लेके सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके लिए ये WHO ने एक रिपोर्ट निकाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज हिंदू एडिटोरियल सेशन। Hope this is helpful for you, hope you understand it easily, and keep practicing on a daily basis, keep reading on a daily basis to improve your English, to say like a fluent speaker. So the only thing that you need to do is to read some vocabularies, to remember some vocabularies, idiom and phrases, and phrasal verbs. With that you should also understand a paragraph easily. We, in addition to that, हमने एक ग्रामर का भी बेसिक सेशन स्टार्ट किया है। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बेसिक से एकदम बिगिनर से, शुरुआत से ही शुरू किया गया है, वहाँ पर वीडियो अपलोड होगा। सो आप अपना नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, उसी से ही चलिए, और ये
एडिटोरियल देखते रहिए. Within 4 to 5 months you will develop your English. I guarantee you, right? So thank you for being with us. Have a nice day.